देश के लोग बदलाव चाहते हैं और नॉर्थ व साउथ इंडिया में इंडिया गठबंधन को लोगों का समर्थन हासिल हुआ है। पिछले 10 साल में देश के किसी परिवार को भाजपा सरकार की योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आय दुगनी करने का केंद्र की भाजपा सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है। देश के 42% ग्रेजुएट अब बेरोजगार है। ये बात कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य व सांसद शशि थरूर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। शशि थरूर ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हर वर्ग के विकास के लिए इंडिया गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं। कांग्रेस धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव में विश्वास नहीं रखती है। देश के हर नागरिक का आर्थिक विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां कानून में जो संशोधन किया है उसे सत्ता में आने पर रद्द किया जाएगा। थरूर ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून सहित सभी जनविरोधी कानूनों को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर खत्म किया जाएगा। इंडिया गठबंधन 5 न्याय गारंटी को लेकर कांग्रेस देश की जनता के बीच में जा रही है। अभी तक के चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला है और देश में इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है। And seeing for myself how much the people of India want change. They want change in Delhi. They want an end to being lectured to with insincere speeches that are not followed by any tangible benefits for the ordinary people of India. And what we are seeing everywhere, in every state, North India and South India, is that the Congress Party and the India Gathbandhan are come together to make a real difference in the lives of people. We are reminding people that this election is about you. It is about your welfare. It is about whether in the course of the last 10 years, you and your family have benefited in any way from decisions of the government. Whether the promises to create 2 crore jobs a year, which have not been fulfilled, have in any way given you and members of your family new or better employment. If you are from the farming community, a Prime Minister who promised to double farmers' income and has completely failed to do so. Again, we are asking you, does this Prime Minister deserve yet another chance? We are asking those young people, college graduates, who discover that if you come out of college with a university degree, that there is 42% unemployment for recent graduates. That is something which is driving so many of our young Indians out of the country. So I say to all of you, if you want social justice, the Congress Party and the India Alliance are for you. And what is more, we in the Congress Party have come up with a very specific set of justice proposals. 5 न्याय, महिला न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। हम चाहते हैं कि सब जन को हमारे देश में न्याय के साथ जीना, डिग्निटी के साथ जीना उनका हक है और हम ये देने के लिए तैयार हैं। I hope you've seen our campaign literature. I was a member of the manifesto committee. We have done some serious work on what the country needs to see happening. And we have also committed to undoing some of the damage that this government has done, repealing a number of anti-people laws and creating an environment in which business can flourish and at the same time the revenues coming to government from business can be given to the poor, the marginalized, the disenfranchised, the excluded. शशि थरूर ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में SC, ST, OBC के आरक्षण को मुस्लिम को देने को लेकर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पीएम मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर ऐसे बातें कर रहे हैं जो कहीं लिखी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जनहित की योजनाएं हैं और यही वजह है कि इसको लेकर चर्चा है, जबकि भाजपा के मैनिफेस्टो को लेकर कहीं चर्चा नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ी के प्रश्न पर शशि थरूर ने कहा कि लोग ईवीएम के डर से बाहर निकलकर इंडिया गठबंधन को वोट करें। लोगों की इच्छा को ईवीएम मशीन दबा नहीं सकती, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो कांग्रेस इसको लेकर अपनी बात आने वाले समय में उठाएगी। ईवीएम्स के बारे में हम नहीं चाहते हैं कि ईवीएम्स को डरा के लोग वोट नहीं करें।
ये हमारी लोकतांत्रिक हक है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है, जाके वोट करनी चाहिए। अगर अंत में लगा कि कुछ अजीब सी चीज़ें चल रही हैं तो कांग्रेस पार्टी इस विषय को उस वक्त देखेंगे, लेकिन हम सबसे कह रहे हैं कि आप जाइए, वोट कीजिए। अच्छे चुनाव चले हैं हमारे देश में ईवीएम्स के साथ, और मेरे ख्याल में जो जनता चाहती है, द पीपल्स विल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय अ मशीन। तो मैं आप लोग से कहता मेरे इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ये भी कहा है कि अगर कोई शक हो कोई भी सिचुएशन में, तो ये जो नया सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं ना लास्ट स्टेज में, वो सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं कैंडिडेट्स नेम्स और फोटोज अपलोड करने के लिए। तो उस वक्त अगर कुछ गड़बड़ हो गए हैं, आपको ये सॉफ्टवेयर 45 दिन तक रखा जाएगा रिजल्ट्स के बाद, और नंबर 2 कैंडिडेट को पूरा हक है कि पैसे देके अपने ही खर्च में उसको एनालाइज कर सके। तो अगर ऐसे कोई शक है, हम ये शक को हम डिस्पेल कर सकेंगे इस किस्म से। लेकिन मैं लोग से कहता हूँ, प्लीज डोंट वरी so much about the EVMs that you don't cast your vote. You must cast your vote. You must vote and exercise your democratic freedoms in this country. हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।